So, hello everyone. Let us start with the accounting terminology. The very first thing is stock. Now, stock means something which is on hand in the business. That means something on hand, goods, spares and other items in the business. इसका मतलब है सपोज आपकी बेकरी का बिजनेस है, तो जो आइटम्स आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आप उससे रिलेटेड चीजें करेंगे. तो वो जो गुड्स आप खरीदते हैं, लाइक ब्रेड, लोव्स, ओके, देन योर cookies, all these will be considered as the stock or inventory of the business. Suppose if the business is of electronic items, then home appliances like refrigerator, then TV, then fridge, or your mixer grinders, etc. will be the part of the inventory. So inventory is basically the stock in hand. Okay. Now there are two types of inventory: opening stock and closing stock. Opening inventory means opening stock. Closing inventory means closing stock. Ending inventory, beginning inventory. This is easy clear to you? इन्वेंट्री विच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड, जो इन्वेंट्री हमारे साल के अंत तक भी खत्म नहीं हुई, जो बची हुई इन्वेंट्री है, द इन्वेंट्री विच इज लाइंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड द क्लोजिंग इन्वेंट्री. एंड ओपनिंग इन्वेंट्री मींस दैट मींस द इन्वेंट्री विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. व्हेनेवर यू स्टार्ट द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, you will have the goods which are lying at the beginning of the accounting period. Okay, so this is called the opening inventory and closing inventory. Okay. Now next is now see examples of inventory. ना इन्वेंट्री में बहुत कंफ्यूजन होता है कि लोग समझते हैं कि बच्चे समझते हैं कि वो जो इन्वेंट्री है वो हमारे जैसे फर्नीचर आपने लिया, एसेट्स फर्नीचर लिया आपने, फर्नीचर लिया आपने, उसके बाद आपने लॉजिस्टिक्स कार ली हुई, ठीक है, उसके बाद आपने अपने कॉलेज की फीस भरी स्कूल के बच्चों की. तो दिस इज नॉट द इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस. इन्वेंट्री मतलब जो आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, बस द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द बिजनेस. The goods used in the operational purpose के लिए जो यूज कर रहे हो आप, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं. These furniture and the car which you have and all these which you purchase, this all considered as the assets of the business. So the difference must be clear कि what is an asset, what is inventory. Though asset may include inventory, but inventory cannot include asset. ठीक है, inventory will be included in the assets. ठीक है, so this is very very important concept that you must understand about inventory and asset. Like construction industry में क्या होगा, residential flats and commercial shops will be the inventory. Then consumer goods में जैसे wheat flour, edible oil, ठीक है, these will be the part of the grocery store. Then automobile industry में car and its spare parts, aluminum, glass, steel, and all those things. Then electronic goods में television, computers, mobile phones, etc. These all will be considered as electronic goods business. So this is all the inventory related to business. They cannot be same for all the companies, all the businesses. They are different for different companies, right? समझ में आ गया इन्वेंट्री क्या होता है. नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस सेल्स क्या होता है. सेल्स बेसिकली वो रेवेन्यूज जो आपको सेल करने से मिला है उसको हम बोलते हैं सेल्स. सपोज आपने बेकरी का बिजनेस था, आपने क्या करा, ब्रेड्स बेची, आपने अपने ब्रेड बेची, आपने लोव्स बेचे, आपने कुकीज बेची. तो ये सब जो आपने बेचा है उससे जो आपको रेवेन्यू आया है, दैट विल बी योर सेल्स. इसमें कोई कमीशन इंक्लूडेड नहीं होती है, इसमें आपकी कुछ भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है. सेल्स मींस जो आपने सेल करके कमाया है. ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए बेसिस बता रही हूँ मैं आपको. वैसे जनरली इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि बहुत सारी चीजें समझने की है इसके अंदर, ठीक है, बट वी विल अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स एज वेरी रिक्वायर्ड ऑफ अस. ओके, बिकॉज ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो तब सही रहेगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. तो इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होती है वो टोटल रेवेन्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज से लिया होता है और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स. सेल्स कैश सेल्स भी हो सकती हैं और कैश सेल्स भी हो सकती है. कैश मतलब you immediately when buy the amount and immediately you buy the amount you pay for it, right. जब आपने immediately किसी को सेल किया तो क्या हो जाता है, कैश से, क्योंकि आप बिजनेस ने सेल किया टू द कस्टमर और बिजनेस से पैसे नहीं लिए तो कौन सी सेल होती है, क्रेडिट सेल, बिकॉज द बिजनेस इज आस्किंग टू पे हिम एट द लेटर डेट. ठीक है, बिजनेस कह रहा है कि मुझे बाद में दे देना, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, यू कैन गिव आफ्टर 30 days. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल. Okay, and cash sale में immediately when the project is sold, the cash is collected by the business. ठीक है. For example, we purchase goods for rupees 1 lakh from A on 10 January. It is a cash payment to him on 10 January by check. Suppose A is doing the business. Think from A's point of view. So A is the business, A is selling the goods, and B is purchasing. So you maintain the records of A. So in the A's books of accounts, what will you write? Yes, we will write goods sold to B. But they are on credit or cash?
See, he promised to make payment on him on 10th January by check. That means immediately the goods were purchased on 10th January and the payment done on 10th January itself. It will be considered as a cash sale. If the sale which have been done without the receipt of cash, okay, and it is promised to be paid after later date, okay, then it is called the credit sale. Clear? Now see, Ravi purchased goods from Mehta and Sons and sold for rupees 1,50,000, some for cash and other to Preeti for 85,000. That means when name is written in the statement, understand that it is sold on credit itself. Nobody will tell you these small things. It is very important to understand the same way as it is in the question. तो सेम फॉर कैश मीन्स 30,000 जो आपको कैश में दिया गया वो मिल गया, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो था वो उधार पे दिया गया 85,000 ऑन क्रेडिट, बिकॉज व्हेन द नेम इज रिटर्न अंडरस्टैंड इट इज रिटर्न ऑन क्रेडिट. And if it is written, it is sold to Preeti for cash. That means cash has been paid off. And name does not matter in that case. This is very, very important. Name does not matter in that case if it is written for cash. But if cash is not written, only name is written, understand that the business has sold the good to Preeti on credit. ठीक है? What is expenses? Expenses basically वो cost होती है जो business incur करता है in the process of earning revenue. जो भी revenues earn करने के लिए आप cost incur कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, कितने हमारे assets जो consume हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस. जैसे कि डेप्रिसिएशन, आप एसेट यूज करते हैं, जैसे तो आपकी एसेट डेप्रिशिएट होती जाती है. सपोज आप कोई कैंडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कैंडीज बना रहे हैं. अब आपकी कैंडी मशीन जो है वो कितना टाइम चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, तो हर साल उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है वो अमाउंट से. इट इज डिक्रीजिंग बाय सम अमाउंट ऑफ द एसेट. that means some value is being declined because it does not have the same efficiency, does not have the same capability to work as it was purchased earlier, right? So that is why these costs are consumed by the business. And another thing is, suppose for purchasing the goods and selling the goods, you also have to buy the, pay the rent of the building. Okay, you have to pay the depreciation. You have to pay some commission. So whatever you are incurring the cost in the process of earning the revenue, that will be considered as the expense. So what are the different type of expenses we have? See, rent is there. So you're consuming this type of amount of expenses. You're consuming this type of assets in the business, okay, to generate the revenue. So how revenue is being generated? जैसे कि रेंट का आपने खर्चा दोगे बिल्डिंग का, जैसे सैलरीज एंड वेजेस दोगे, ऑफिस सप्लाईज खरीदोगे, जो स्टेशनरी वगैरह सामान जो आपको चाहिए होता है, फिर रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, electricity charge, repairs and maintenance, fuel expenses, telephone charges. These all are the amounts of assets which are consumed by the business on day-to-day basis to earn the revenue. And this all consumption of assets and use of the, use of the standing of the money, okay, that is considered as expense. जो business को चलाने के लिए आप खर्चे कर रहे हैं, वो सारे expenses कहाँ जाते हैं? आपके एक्सपेंसेस में. इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. डेप्रिसिएशन भी एक तरह का एक्सपेंस है, बिकॉज इसमें हमारा एसेट कंज्यूम होता रहता है. जैसे सपोज आपने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपने खरीदा 10 लाख का, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फर्नीचर बहुत चमक रहा होगा, ठीक है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा होता है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और अच्छा कम लग रहा होता है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में जाके तो बेचारा वो wear and tear हो जाता है उसका बुरी तरह. ठीक है, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Diminution in the value of an asset due to the use or excessive use or wear and tear or obsolescence in the technology or basically your जबकि वैल्यू गिर जाती है, एसेट की वैल्यू बहुत कम होने लगती है. आप किसी मशीन को यूज करो बार बार, एफिशिएंसी बढ़ेगी ही घटेगी, थोड़े टाइम बाद तो बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप वो कम होती चली जाएगी. तो इसको ही बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कि आपका एसेट डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया. Asset starts depreciating. Okay. Accounts जनरली जो डेप्रिसिएशन आपका होता है वो यही होता है कि जब शुरू में आपने कोई एसेट खरीदा, it is very well working very well and it is smooth, efficient, and after the latest years of the purchase it becomes less efficient, और इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है. एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मतलब होता है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ एक्सपेंडिचर ही है, एक्सपेंसेस ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है. एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ध्यान से सुनना इस चीज को. जब आप स्पेंड करो मनी,
और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, आप कुछ मनी पैसे खर्च कर रहे हो, आप कुछ लायबिलिटी इनकर कर रहे हो, मतलब कुछ सामान खरीद रहे हो जिससे कि आप उसे बेच सको, तो लायबिलिटी होगी ना। समझ आया लायबिलिटी क्यों बोला इसमें? इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट मतलब कि आप जैसे आपने बिजनेस करना है, आपने क्या करा, पैसे खर्च किए, रेंट देना शुरू किया, बिल्डिंग मशीनरी का जैसे एप्रिसिएशन देना शुरू किया, उसके बाद आपने खर्चे करने शुरू कर दिए, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद आपने कुछ लायबिलिटी भी इनकर करी, सपोज आपने कुछ एसेट्स खरीदे जिससे कि आप उन्हें बेच सके, आपने कुछ ऐसी चीजें खरीदी जो आपको बेच सके, सपोज आपने 10,000 रुपए की गुड्स खरीद ली किसी एबीसी कंपनी से, तो वहां पर वो आपकी लायबिलिटी हो गई कि आपने खरीदा, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने गुड्स खरीदे क्यों है, बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटी इनकर हो रही है वो किस वजह से हो रही है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने करा है सब। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है आपका, आपकी सेल हो जाएगी, आप परचेस हो रहे तो सेल कर दोगे, ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो, ठीक है। बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है एक्सपेंडिचर, जो होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बेनिफिट और एक्सपेंडिचर आपको एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ कि बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब आपको जो खर्चा किया वो खर्चा आपको लिमिटेड टाइम के लिए बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट, आपने रेंट की बिल्डिंग का 1 महीने का रेंट दे दिया, वो आपको कितने महीने तक बेनिफिट देगा, 1 महीने तक, एग्जॉस्ट हो गया 1 ईयर में। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है आपका शिपिंग का, आप शिपिंग करते हो, गुड्स को कैरी करते हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी करते हो आप गुड्स को डिलीवर कराने में टू द कस्टमर, वो आपको जो आपने खर्चा किया वो कितने टाइम का बेनिफिट दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा वो बेनिफिट, राइट। 1 दिन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके हैं फ्यूल चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 1 साल के अंदर अंदर ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दे सकते, आप खर्चा करते हो, खर्चा करते हो जो आपको बेनिफिट देगा सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा उसका बेनिफिट, 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने भी दिन, बट लेस देन 1 ईयर। समझ में आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। सपोज आपने एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीद ली, वो आपको बेनिफिट देगी पूरे 1 साल तक, दस अच्छा देगी, अगले साल भी अच्छा देगी, फिफ्थ सिक्स ईयर में जाकर उसकी एफिशिएंसी कम होगी, दैट मीन इसने आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दिया, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैवी व्हीकल्स जो आप परचेज किया आपने, ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज किया, ऑफिस इक्विपमेंट्स आपने परचेज किए, ऑफिस प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीद ली आपने, ये सब आपको बेनिफिट देंगे फॉर मोर देन 1 ईयर, सो दे ऑल विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू, नॉट रेवेन्यू बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, आपने पैसे जितने खर्च किए उससे ज्यादा आपने कमा लिया। जैसे आपने 80,000 खर्च किए थे, आपने 80,000 खर्च किए थे, 7 लाख आपने कमाया, तो 6,20,000 आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, सिंपल है, इजी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि फ्यूल चार्जेस हो गए आपके, फ्रेट एंड चार्जेस हो गए, है ना, परचेजेस, ये सब आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ये आपकी सारी आती है प्रॉफिट के अंदर। गेन, अब गेन क्या चीज होती है, गेन बड़ी, ये जो प्रॉफिट में जो अकाउंटिंग में जो चीजें हैं ना, गेन कभी प्रॉफिट, कभी रेवेन्यू, कभी सेल्स, दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग टर्म्स, तो इनका समझ में आना, डीप समझ में आना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गेन मतलब क्या होता है, किसी इवेंट से आपको कुछ अचानक से फायदा हो जाना, किसी इवेंट से आपको या ट्रांजेक्शन से इंसिडेंटल कुछ फायदा हो जाता है, इसको बोलते हैं गेन। जैसे कि आपने कोर्ट केस जीता, कोई अरे बहुत सालों से केस चल रहा था एंड यू जस्ट वन द केस, यू गॉट 50 लाख रुपीज, ठीक है। एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एक एसेट की वैल्यू थी 50,000 थी, अब वो 1 लाख हो गई, वेरी गुड। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने क्या करा, अचानक से जो फिक्स एसेट आपके पास थे, आपने अचानक डिसीजन लिया कि इसको बेचना पड़ेगा बिकॉज ये पुराने हो गए हैं, तो यहाँ पर जो आपको बेनिफिट हुआ ये गेन होगा, तो ये हमारा रेवेन्यू नहीं हो सकता, ये गेन ही होगा। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल भी बहुत अच्छी चीज है, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे प्लीज समझिएगा इसको ध्यान से। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर फर्म के अंदर उसको हम कहते हैं कैपिटल। सपोज करो ए बी सी और 3 जने थे, इन तीनों ने कहा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर ये बोल दिया कि तुम फर्नीचर लेकर आओगे, फर्नीचर मशीनरी इक्विपमेंट लेकर आओगे, और तुम लेकर आओगे सारे स्टॉक का सामान, और ये जो थर्ड बंदा है वो सारे के सारे अपने लोन्स ले आएगा, लोन्स खट्टा करके लेकर आएगा, ठीक है। अब ये सब जो भी लेकर आए बिजनेस के अंदर ये सब कैपिटल,
जो भी whatever the amount of money or the assets being brought in by the proprietor or the owner of the firm, that will be known as capital. Whatever the owner is contributing to the business, that is known as capital. वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है. ये कैश में भी हो सकता है, एसेट में भी हो सकता है. एंड इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस. इट इज देयरफॉर शोन ऑन द कैपिटल साइड ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ बैलेंस शीट पता है वो क्या होती है? इसमें एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है. एसेट और लायबिलिटीज का हमने पहले वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा. उसमें एसेट्स और अलग होते हैं, लायबिलिटीज अलग होती है. तो एसेट साइड में हम क्या लिखते हैं? सारे एसेट्स. और कैपिटल साइड में हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में सारी कैपिटल. ओके, और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. ठीक है. So for example, here you can what capital can be various types over here, like machinery, buildings, land, cash, inventory, debtors, retained earnings. मतलब earnings which have been accumulated during the period of the inception of the business. जब से business start हुआ तब से आपने कितनी inventory, कितना आपने अपने savings बचा के रख रखी है, कितना cash और कितनी earnings आपने बचा के रख रखी है. ठीक है. Now shareholders equity, this will be explained in the later stage of the chapter because अभी बता दूंगी तो confuse हो जाओगे आप लोग. लोन्स है, बॉन्ड्स है, मतलब लोन्स जो आप लोन्स और डिवेंचर साइन करते हो, उधार लेते हो, जो आप डेट लेते हो, उसके लिए बोल रहे हैं. तो जो अगर किसी उधार का पैसा भी बिजनेस में लेकर आ रहा है, सपोज किसी ने 1 लाख से लोन लिया, तो 1 लाख जो ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. क्लियर? Now they are the revenues क्या होते हैं? They are the amounts earned by selling the products or services. Basically it is sales only, sales revenue only. ठीक है. इसमें देखिए आपकी सब चीजें आ जाती है रेवेन्यू के अंदर. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड, कमीशन. समझ रहे हो? दिस इज वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. सो जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिफरेंट. ठीक है. सी आपने 2 रेवेन्यूज पढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डेफर्ड का मतलब क्या होता है. सपोज करो मैंने कोई ना मेरी मैं कंपनी हूँ, ठीक है. मेरी सपोज कंपनी का नाम है राम एंड सन्स. ठीक है. एंड जो दूसरी मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सारे, सपोज लेट्स से राम एंड सन्स तो मेरी बिजनेस का नाम है, और दूसरे जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ABCD ऐसे करके. ठीक है. अब मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए मैंने बहुत सारा एडवर्टाइजिंग खर्चा कर दिया. अब मुझे बताइए, आप एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना, स्पेंडिंग हेवीली ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इज इट गुड और बैड फॉर द बिजनेस? इट इज गुड फॉर द बिजनेस, बिकॉज जब आपने जितना एक्सपेंडिचर किया, वो लोगों के दिमाग में, एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन आ जाता है प्रोडक्ट ऐसा है, तो लोग खरीदने की सोचते हैं. समझ रहे हो? लोग खरीदने की सोचेंगे, लोग खरीदेंगे, सोचेंगे. उसके बाद क्या होता है कि वही चीज भाई आपको अब लेटर ईयर्स ऑफ द दैट गुड, you don't have to spend that much amount of money. लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और लोग खरीद भी सकते हैं, राइट. तो शुरुआत में अगर आपने हैवी एक्सपेंडिचर कर भी दिया है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो वो पूरा एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंसेस 1 साल के लिए नहीं है, वो एक्सपेंसेस आपने 5-6 साल तक के लिए कर दिया है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में रहेगा. कोई ऐड आप देखते हो, आपको लगता है ना, आप उसे याद रहता नहीं रहता, अरे ये प्रोडक्ट भी हमने देखा था, उसे खरीदेंगे हम. होता है नहीं होता? ऐसा होता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरली हमको पता होता है कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ये वाले एक्सपेंसेस will provide you benefit for more than 5 years, 3 years, 2 years, right? So they are called deferred revenue expenditure. Okay, second example, कोई कंपनी रिसर्च कर रही है, एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है, सपोज टूथपेस्ट, सेंसोडाइन टूथपेस्ट. एक बार उसकी रिसर्च अगर उसने कंप्लीट कर ली, विल इट बेनिफिट हिम फॉर 1 year ओनली और मोर देन 1 year? मोर देन 1 year. ठीक है. थर्ड एग्जांपल, सपोज एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर लिया आपने. ठीक है. मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब आपने कर लिए. तो क्या आपको हर साल बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं. बिजनेस रजिस्टर्ड नाउ. ठीक है. तो ये एक्सपेंसिव प्रोवाइड, दिस एक्सपेंसिव प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 year. अब यहां पर इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब छोटी सी प्रॉब्लम कहां आती है? अब आप बोलेंगे कि मैम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? ठीक है. ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके डिवाइड होते हैं हर साल में. ये एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं डिवाइड किए जाते हैं हर साल में. आपको हर साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट किया जाता है. सपोज करो अगर हेवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के ऊपर आपने 80 लाख खर्च किए, तो आपके 10 साल में, आपको लगता है 10 साल यूज करेगा तो इतना इंपैक्ट करेगा, 10 साल तक इसका इंपैक्ट रहेगा, तो 80 लाख ना, 8 लाख विल बी द कॉस्ट ईच ईयर, विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इतना पैसा हमारा गया इन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स.
समझ में आ रहा है? सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं इट इज बेसिकली स्पेंट मनी ऑन नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट एंड प्रोवाइड यू बेनिफिट फॉर मोर देन वन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स rather than just 1 year. इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर नाउ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट राइट टू मी ऑन दिस.